السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں رمیز احمد اور میں ہوں رمضان۔ بلٹن میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں تعلیمی سرگرمیوں کی بحالی سے متعلق بڑے فیصلے کی۔ طلبہ، اساتذہ اور والدین کا طویل انتظار ختم ہوا، اب تیاری پکڑ لیں۔ ملک بھر میں تمام تعلیمی ادارے 15 سے مرحلہ وار کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اسکولوں میں بچوں کی ایک دن چھٹی اور ایک دن کلاس ہوگی۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے خبردار کر دیا، کورونا SOPs کے خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اسلام آباد سے فرح ربانی کی رپورٹ۔ طلباء، اساتذہ اور والدین کے لیے بڑی خوشخبری۔ بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس میں بڑے فیصلوں کی NCOC نے منظوری دے دی۔ جامعات، کالج اور 9ویں 10ویں کا تدریسی سلسلہ 15 ستمبر سے بحال ہوگا۔ 6ٹھی، 7ویں، 8ویں کلاسز 23 ستمبر سے، جبکہ نرسری سے 5ویں تک 30 ستمبر سے دوبارہ شروع ہوگی۔ اجلاس کے بعد وزیر تعلیم شفقت محمود نے پریس کانفرنس میں اہم وضاحت بھی کر دی۔ جو فیصلہ آج کیا گیا ہے، اس کا اطلاق سب پہ ہے، مدارس پہ بھی ہے، سرکاری اسکولوں پہ بھی ہے، پرائیویٹ اسکولوں پہ بھی ہے، اور ووکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہے ان پر بھی ہے۔ یہ بھی بتا دیا کہ کسی اسکول میں کوئی ڈبل شفٹ نہیں لگے گی۔ ہر کلاس کے نصف طلبہ ایک روز اور باقی نصف دوسرے روز حاضر ہوا کریں گے۔ تمام طلبہ اور اساتذہ کے لیے ماسک پہننا لازم، خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا انتباہ۔ جہاں پہ ہم نے یہ محسوس کیا کہ SOPs پہ یا احتیاط نہیں برتی جا رہی، وہاں پہ حکومت جو ہے وہ پھر تادیبی کارروائی بھی کر سکتی ہے۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کے مطابق طلباء کے لیے درسی نصاب مختصر کرنے اور امتحانات میں سہولت دینے کے لیے بھی مختلف تجاویز زیر غور ہیں، جس کے حوالے سے اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ فرح ربانی، سما، اسلام آباد۔ تعلیمی اداروں میں SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ موم نے خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، کلاسز 2 شفٹوں میں لی جائیں گی، آدھے طلبہ ایک اور آدھے دوسرے دن اسکول آئیں گے۔ منتخب کیے ہوئے اسکول اور یونیورسٹیز میں ہر 2 ہفتے بعد ٹیسٹنگ ہوگی۔ کیسز میں اضافہ ہونے کی صورت میں فیصلے پر نظر ثانی بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر ایک کلاس کے کمرے میں 40 بچہ عام حالات میں بیٹھتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس کو ہم 2 شفٹوں میں یا 2 دنوں میں ڈیوائیڈ کر دیں۔ 20 بچے ایک دن آئیں اور 20 بچے اگلے دن آئیں۔ تمام ماں باپ سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے چاہے کپڑے کا ماسک، ایک کپڑے کا حصہ لے کے ایک رومال نما جگہ کو، کپڑے کو اس کے ساتھ ڈوریاں ڈال کے اس سے بھی ماسک بنایا جا سکتا ہے اور اس کو روزانہ دھو کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تعلیمی اداروں کو بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اس قسم کی سمٹم کی اسکرین اور جہاں ممکن ہو وہاں ٹیمپریچر چیک کیا جائے تاکہ بیمار بچے یا بیمار نوجوان جو ہیں وہ تعلیمی اداروں میں نہ آئیں۔ چنے ہوئے اسکول اور کالج اور یونیورسٹیاں جو ہیں ان میں ہر 2 ہفتے بعد ٹیسٹنگ ہوگی تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہوتا رہے کہ بچوں کے اسکول اور یونیورسٹی آنے کے بعد کوئی خاطر خواہ اضافہ تو نہیں ہو رہا بیماری میں۔ اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی اونچ نیچ آتی ہے تو ہم اس کے مطابق اپنے فیصلے کو ریوائز بھی کر سکیں اور کچھ بہتر تدابیر بھی اس میں بروئے کار لا سکیں۔ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن نے تعلیمی ادارے مرحلہ وار کھولنے کا فیصلہ مسترد کر دیا۔ ایسوسی ایشن کے صدر ابرار حسین کہتے ہیں، بازار کھلنے سے مسئلہ نہیں ہوا تو اسکول کھلنے سے بھی نہیں ہوگا۔ اسکولز کھولنے کے حکومتی فیصلے پر والدین نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ تقریباً آدھا سال اس کا کیا ہوگا، اس کا کون سوچے گا؟ والدین تو فیس بھر رہے ہیں، ہم لوگ بگڑتے بھی جا رہے ہیں اور بھولتے بھی جا رہے ہیں، تو پیپرز ہوں گے تو آگے تو بڑھیں گے۔ ہجوم لگا ہوا ہے، بازار ہو، گھر ہو، ہر جگہ ہجوم لگا ہوا ہے، لیکن ایک اسکول پہ وزن آیا ہوا ہے، یہ غلط ہے۔ جب کھولو ساروں طرف کھولو، نہیں کھولو تو کچھ بھی نہ کھولو۔ میں خود ٹیچر ہوں اور میں جاب لیس چل رہی ہوں اس وقت، تو اسکول کھلے گا تو ہماری جاب کا بھی مسئلہ حل ہوگا۔ آن لائن کلاسز میں یہ تھا کہ صحیح سے پڑھ نہیں پا رہے تھے کیونکہ کبھی لائٹ چلی جاتی تھی، کبھی موبائل کا مسئلہ ہوتا تھا، کبھی ٹیچر بھی کبھی کور نہیں آ پاتی تھی۔ بچے گھر میں بیٹھے ہیں، تنگ ہو رہے ہیں اور ان سے جو ہے بہت سبق مس ہو گیا۔ جب اسکول کھل جائیں گے تو لوگوں کا کاروبار بھی بڑھ جائے گا۔ مجھے بہت دل چاہا تھا کہ اپنی دوستوں سے ملوں، ان سے بات کروں۔ ہر چیز کو ہاتھ لگائیں گے، ٹیبلز ہیں، چیئرز ہیں، سب چیزیں جمز والی ہیں، واش روم جائیں گے، ساتھ بچے جڑ کے بیٹھے ہوں گے، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ تھوڑا سا اور ٹائم دینا چاہیے تھا گورنمنٹ کو،
اور ہوپس ہو کہ وہ لوگ دیں بھی. انشاءاللہ تعالی ہمارے ادارے جو ہیں تعلیمی ادارے وہ نارملی کام کریں گے انشاءاللہ تعالی. ڈسٹینس رکھنا ہے, ماسک, سینیٹائزر, تو ہمیں وہ بھی یوز کرنا ہے. 50% اٹینڈنس ایک دن ہوگی اور 50% نیکسٹ ڈے ہوگی. یہ بڑا اچھا فیصلہ گورنمنٹ کا. والدین کو اس کا شدت سے انتظار تھا کہ بچے اسکول جائیں اور اپنی تعلیم کو دوبارہ شروع کریں. یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, تعلیم کو تو رکنا ہی نہیں چاہیے. اسکول تو کھلنے والے ہیں مگر بچوں کو آن لائن کلاسز ضرور یاد آئیں گی. کچھ بچے آن لائن کلاسز سے پریشان ہیں تو کچھ بچے خوش بھی ہیں. لائیو سٹریمنگ سے کلاسز کو کامیاب قرار دیا. بچے کہتے ہیں ٹیچر سے بات تو آن لائن بھی ہو جاتی ہے, دوستوں سے بھی فون پر رابطے میں رہتے ہیں. میں نے آن لائن کلاسز لی ہیں اور میں بہت پابندی سے اپنی کلاسز لیتی تھی, اور میں نے اپنے موبائل پہ کلاسز لی ہیں اور مجھے بہت مزہ آیا کلاسز لیتے وقت. مجھے کچھ نیا سیکھنے کو ملا. اب اسکول جانا ہے تو تھوڑی بہت SOPs اور پریکاشنز تو کریں گے, تھوڑا سا مینٹین کچھ دنوں تک کریں گے, لیکن جب وہ بالکل ہی فنش ہو جائے گا تو پھر ویسے ہی نارمل روٹین کنٹینیو کریں گے. میرا اسکول جانے کا تو بالکل دل نہیں کرتا. فائدہ کیا, آن لائن کلاسز چل رہی ہیں تو چلتی رہیں, دوستوں سے بھی بات ہو جاتی ہے فون پہ, ٹیچر سے بھی ہوتی ہے, تو اسکول جانے کا فائدہ کیا. گورنمنٹ نے اس دفعہ جو چینل لایا اس سے باقی بچوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے, تو اس طرح گورنمنٹ کو انیشیٹو لینے چاہیے تاکہ بچوں کو فائدہ ملے. جب ان کی کلاس نہ ہو کسی دن یا کوئی ایشو ہو تو اس کی وجہ سے بچے گھر میں بیٹھ کے اس چینل سے کچھ سیکھ پائیں. کرونا وائرس میں آن لائن پڑھنے کے بہت سے میں نقصان بھی ہوا کہ کبھی انٹرنیٹ خراب ہو جاتا تھا, کبھی کوئی ایشو ہو جاتا تھا, کبھی ٹیچر کے لیپ ٹاپ میں یا ڈیوائس میں ایشو ہو جاتا تھا. اس سے بہت سے اسٹوڈنٹس کی ایجوکیشن کو نقصان ہوا. اب یہ ہے ہمیں اس چیز کا فائدہ ہو جائے گا کہ ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ مل پائیں گے. پنجاب میں اساتذہ اسکول کھلنے کے اعلان سے خوش ہیں, لیکن کرونا ٹیسٹ اپنی جیب سے کرانے کی فکر ستائے جا رہی ہے. لاہور سے دانیال عمر کی رپورٹ دیکھیے. پنجاب میں اسکول کھولنے کی تیاریاں شروع کر دی گئیں. SOPs پر عمل درآمد کے لیے اساتذہ کی تربیت جاری ہے, لیکن اپنے خرچے پر کورونا ٹیسٹ کرانے کی تجویز ان کے لیے درد سر بنی ہوئی ہے. ٹیچرز کروائیں گے خود ٹیسٹ, کیوں حکومت پہ آپ بوجھ ڈالتے ہیں, کیوں ٹیکس پیئر کا پیسہ آپ اس طرح کرنا چاہتے ہیں. ایک ٹیچر ہے جس کو ماشاءاللہ زبردست سیلری مل رہی ہے, وہ ایک کورونا کا ٹیسٹ کرا کے اپنی جاب پہ نہیں آ سکتا. یہ تو میرے خیال سے ایک بڑا ہی انفیئر قسم کا کام ہوگا. سرکاری اداروں کے اساتذہ کے لیے کورونا ٹیسٹ پرائیویٹ لیبارٹری سے کرانے کی تجویز پیش کی گئی ہے. ادھر پرائیویٹ اسکول ایسوسی نے پنجاب حکومت کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کی نہ ہی لیبارٹریز میسر ہیں, نہ ہی پبلک سیکٹر میں لیبارٹریز میسر ہیں, اور آج بھی اگر وہ سلسلہ شروع کریں تو یہ اگلا 2 سے 3 سال اس پروسیس میں لگیں گے. تو کیا یہ ایک واضح طور پہ اس تعلیم دشمنی کا ثبوت نہیں, اور جو ظاہر کرتا ہے کہ آپ اس آڑ میں جو ہے مزید جو ہے تعلیم کا جو تسلسل ہے اس کو بند رکھنا چاہتے ہیں. پنجاب میں بچوں کا کوئی کورونا ٹیسٹ نہیں ہوگا. کسی بچے کو بخار ہوا تو اسے گھر بھیج دیا جائے گا. دانیال عمر, سما, لاہور. کرونا وبا میں اسکول بند ہوئے تو کئی اساتذہ بے روزگار ہو گئے. سکھر میں انگلش اور سندھی مضامین پڑھانے والے ٹیچرز پر یہ 6 ماہ کیسے گزرے, جانتے ہیں انہی کی زبانی. اگر اسکول مینجمنٹ ہمیں ٹائم پر سیلری دیتی تو میری ایسی حالت نہیں ہوتی, میرے بچے ایسے روتے نہیں, میرے بچے کبھی بھی اس طرح سے منہ لڑکائے گھر پر بیٹھے زندگی نہیں گزارتے. آپ تصور کریں کہ اگر آپ کے بچے 3 دن سے بھوکے ہوں اور صرف 2 کھجوریں اور پانی پیتے ہوں, اور آپ سے وہ مانگیں کہ مجھے آج کھانا چاہیے, اور آپ کے پاس کچھ نہ ہو, تو آپ کیا سوچیں گے؟ جن کے پاس میں لوٹ کر گیا ان کو بتایا کہ میں مر رہا ہوں, میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے. میں نے در کے ٹھوکریں کھائیں, میں نے ہاتھ پھیلائے بچوں کے لیے, میں نے 2 10 20 روپے میں کام کیے, ایسے لوگوں کے کمپیوٹر پہ کام کیے, جو میں نے بولا کہ بھائی 10 روپے دے دو, 5 روپے دے دو, 20 روپے دے دو, آٹا لے کر جو ہے نا گھر پر دیا. میں نے 5 کلو کے تھیلے کے آٹے کے پیچھے سارا دن گزار دیا ہے. سیاسی چکر بس, اور کچھ بھی نہیں. لائن میں کھڑے رہو, اور جب وقت آیا, ٹائم آیا تو سیلفیاں. یہ ہے ہمارا ریاست مدینہ, یہ ہے ہمارا پاکستان. کرونا گردی کے دور میں شروع ہونے والا حکومت کا ٹیلی اسکول پروگرام اب تک کتنے بچوں کو فائدہ پہنچا سکا, یہ منصوبہ کتنا مشکل یا آسان تھا,
और टेली स्कूल्स के जरिए तदरीस का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? समा ने इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए इंचार्ज टेली स्कूल प्रोग्राम सादिया अदनान से खुसूसी गुफ्तगू की। आइए सुन लेते हैं। 14 अप्रैल से इसको लॉन्च करने के बाद से ये रोज़ाना 10 घंटे की नशरियात जो है वो मुसलसल जारी हैं। इनिशियली हमें जो है वो टास्क मिला था कि हमने 3 महीने के लिए काम करना है। तब ये सोच रहे थे कि स्कूल जो है वो जल्दी खुल जाएंगे, तो इनिशियली 3 महीने में बच्चों को लर्निंग लॉस बचाने के लिए हमने प्रोग्राम डिज़ाइन करना था। पहली क्लास से लेके 12वीं क्लास तक के सारे बच्चों को सामने रख के उनका जो अवेलेबल कंटेंट था, उसमें जो हमारे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप सामने आई, उन्होंने हमें नेशनल कॉस्ट के तौर पे फ्री ऑफ कॉस्ट अपना कंटेंट प्रोवाइड कर दिया। तकरीबन 40 मिलियन बच्चे हैं जो इस स्कूल एज के इस वक्त स्कूलों से बाहर थे, और वो 40 मिलियन के टारगेट को सामने रखते हुए काम करना शुरू किया था। जो उसका मैकेनिज्म हमने अडॉप्ट किया वो टेरेस्ट्रियल, केबल, सैटेलाइट तीनों थे, ताकि हम उन 95% तक हम एक्सेस जो है वो इंश्योर कर सकें। गैलप के सर्वे ने हमें ये आइडेंटिफाई करके बताया कि 1 महीने के अंदर तकरीबन 12 मिलियन हाउस होल्ड में ये प्रोग्राम जो है वो देखा गया। ये परेशानी वाले दिन थे, लेकिन इन्होंने हमें एक अल्टरनेट तरीका एक्सप्लोर करने का मौका दिया, और अभी मिनिस्ट्री जो है इस नए के ऊपर काम कर रही है कि ये जो चैनल है ये आइंदा भी जारी रहे, और स्कूल खुल भी जाएँ तो स्कूल खुलने के बाद इस चैनल को हम इस्तेमाल करें। तो ये चैनल तो इंशाल्लाह आपको अगले 2-3 साल तक किसी न किसी फॉर्म में नज़र आता रहेगा। हमने तो काम किया है वो अपने ही इदारे के बजट के अंदर रहते हुए काम। कुछ दीगर खबरें शामिल करें। शिमाली वज़ीरिस्तान में खतरनाक दहशतगर्द ग्रुप के सरबरा समेत 6 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे, 10 को गिरफ्तार कर लिया गया। मीर अली में पाक फौज ने बड़ी कार्रवाई की। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में खतरनाक दहशतगर्द ग्रुप के सरबरा वसीम ज़करिया समेत 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए, जबकि 10 अमन दुश्मनों को जिंदा पकड़ लिया गया। हैदर खेल से ताल्लुक़ रखने वाले मतलूब दहशतगर्द कमांडर वसीम ज़करिया 2019 से अब तक होने वाली दहशतगर्दी की 30 मुख्तलिफ कार्रवाइयों का मास्टरमाइंड था। कमांडर वसीम टारगेट किलिंग, हुकूमती इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के साथ साथ CSS ऑफिसर जुबैदुल्ला दावड़ की शहादत में बराह रास्त मुलव्विस है, और हसूखेल के पास फौजी काफिले पर हमले में भी शामिल था। मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख ने कराची को मुल्की मईशत की तरक्की के लिए अहम तरीन शहर करार दे दिया। कहा, ऐलान करदा पैकेज के तहत रकम फराहम की जाएगी। कराची जो है पाकिस्तान की मईशत के लिए अहम तरीन शहर है। अच्छी डेवलपमेंट है कि प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट मिलकर इस शहर के जो देरीना मसाइल हैं उनको हल करने जा रहे हैं, और इसके लिए जो अमाउंट्स रखे गए हैं वो इंशाअल्लाह ताला मुहैया किए जाएंगे, और इसको अच्छे अंदाज में इस्तेमाल होना चाहिए। खान साहब की तो जो सियासत है वो बुनियादी तौर पे बेस इस चीज़ पर है कि जो आम लोग हैं पाकिस्तान में उनकी मदद की जाए। उनकी कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है कि जी जिसमें सिर्फ अमीरों की मदद करनी है, या उनके कोई अपने धंधे हैं जिनको वो चलाना चाह रहे हैं, या उनके कोई ख़ानदान के लोग हैं जिनको वो कंसेशंस देना चाह रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं। सऊदी अरब पाकिस्तान का करीब तरीन दोस्त मुल्क है। जो ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के वो आलीशान है। ये जो इकनॉमिक एक तरह से रिलेशनशिप है वो हर लिहाज से बरकरार है, और उसमें जो है कोई कमी बेशी नहीं होनी जा रही। कराची में नालों पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार है। अभी तक मार्किंग भी मुकम्मल नहीं हो सकी। सलमान अहमद की रिपोर्ट देखिए। गुज्जर नाले पर तजावुजात के खात्मे का मिशन। आप किसी का घर नहीं कराएंगे जब तक आपने नया घर नहीं तामीर किया हो। बिलावल के बयान के बाद ऑपरेशन को ब्रेक लग गए। इंतजामिया गायब, मार्किंग मुकम्मल हुई, न सर्वे के लिए टीमें ठंडे कमरों से निकली। दूसरी तरफ नाले के अतराफ रहने वाले परेशानी का शिकार हैं। पहले आए कटिंग करके गए, ये लोग बोल के गए कि भाई यही जगह छोड़ दो आप, ठीक है। हम लोगों ने छोड़ दी। अब पीछे बनाई, पीछे बनाने के बाद फिर आ गए 5-6 दिन पहले कटिंग के लिए कि भाई ये जगह आप दे दो। मेरा एक मकान है आगे की तरफ है थोड़ा सा, तो वो मेरे वालिद का था जो कि मेरे को विरसे में मिला है। अगर वो चला जाता है तो मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है।
अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ? अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ सर्वे टीम का, मेरी उनसे मुलाकात हो जाए। इससे पहले 3 रोज तक कैफे प्याला, ज़ियाउद्दीन अस्पताल और न्यू कराची में सिर्फ चंद दुकानों और गोदाम समेत कमर्शियल तजावुज़ात गिराई गई थीं। शहरी कहते हैं कि माजी में भी कई ऑपरेशन हुए जो नाकाम हुए। अगर इस ऑपरेशन को कामयाब बनाना है तो मुतासरीन के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के साथ साथ ऑपरेशन के अमल को भी तेज़ करना होगा। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। वफाकी हुकूमत ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत तरक्याती मंसूबों की लागत का तखमीना 736 अरब रुपए लगाया है। सुप्रीम कोर्ट से बहरिया टाउन फंड के 125 अरब के इस्तेमाल की इजाज़त ली जाएगी। वफाकी हुकूमत बाकी 611 अरब रुपए का इंतज़ाम करेगी। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, कराची प्लान पर असद उमर की सदारत में ये इजलास हुआ है, मज़ीद क्या पेशरफ सामने आई? जी हाँ रमीज, इस इजलास में वजारत खजाना, रेलवे और वजारत मनसूबाबंदी समेत दीगर मुतल्लिका जो महकमे और इदारे हैं उनके हुकाम ने शिरकत की है। और इजलास को बताया गया कि जो 1100 अरब रुपए का कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का अनाउंसमेंट की गई है उसमें से 736 अरब रुपए वफाकी हुकूमत जो है वो खर्च करेगी और 125 अरब जो है वो सुप्रीम कोर्ट से जो है इजाज़त तलब की जाएगी कि 125 अरब रुपए जो बहरिया टाउन के फंड्स के हैं वो इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए और 611 अरब रुपए का इंतजाम खुद किया जाएगा। वफाकी वज़ीर असद उमर का ये कहना था कि कराची ग्रेटर वाटर सप्लाई मंसूबे के लिए 46 अरब और सर्कुलर रेलवे जो मंसूबा है उसके लिए 300 अरब और इसी तरह ग्रीन लाइन BRT मंसूबे के लिए 5 अरब खर्च किए जाएंगे। रेलवे फ्रेट कॉरिडोर मंसूबे के लिए भी 131 अरब खर्च होंगे और नालों की सफाई के लिए सबसे ज्यादा तकरीबन 254 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। अब ये कहा गया है कि सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर इस पर प्लान पर अमल किया जाएगा और तमाम तौर सियासी इख्तिलाफात एक तरफ रखकर इस मंसूबे पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद के लिए कोशिशें की जाएंगी। रमीज, अपडेट्स के लिए शुक्रिया शकील। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बुलंदियों के मनाजिल तय कर रही है, लेकिन इसकी इमारत में दाखिल होने के लिए सीवरेज का दरिया पार करना पड़ता है। अहम शाहराह पर ट्रैफिक जैम मामूल बन चुका है। ट्रावर से आई चंडीगढ़ रोड का अहवाल देखिए साथ साबरी की इस रिपोर्ट में। कराची की वॉल स्ट्रीट पर कायम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का शुमार इन दिनों दुनिया की बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली मार्केट में हो रहा है, लेकिन अफसोस कि हमारी ही सूबाई हुकूमत को एहसास नहीं। बुलंदोबाला इमारत के अतराफ सीवरेज का पानी इंतजामिया को मुंह चढ़ा रहा है। नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं, वॉल्यूम अच्छे जा रहे हैं और उसके साथ साथ मार्केट भी परफॉर्म अच्छा कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये प्रॉब्लम भी अपनी जगह पर है। गवर्नमेंट यहाँ पे कोई वही नहीं देती, तवज्जो नहीं देती, बहुत बुरा हाल है। हालांकि इतना पैसा है, ये तो चाहिए इनको समय पहले स्टॉक को देखा जाए। साबिक डिप्टी डायरेक्टर मुजफ्फर मोतीवाला का कहना था कि जहाँ से मुल्क की मईशत चलती है वहाँ की हालत देखकर अफसोस होता है। आज सुबह हफीज शेख साहब भी यहाँ आए थे और उन्होंने भी प्रॉमिस किया है कि इसका कुछ इलाज करेंगे। अब आप पूरा रास्ता अपने कैमरामैन को दिखाएं कि इधर की एंट्री एग्जिट जो कैपिटल मार्केट के अंदर आने जाने की तकलीफ इतनी है, तो हमारे पास इन्वेस्टर, फॉरेन फंड्स, मैनेजर्स, बेल रिंगर्स, गवर्नमेंट के ऑफिसर वो कैसे आएंगे? आई चंडीगढ़ रोड पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ही नहीं, स्टेट बैंक समेत कई मुल्की और गैर मुल्की इदारों के दफातर हैं, लेकिन हुकूमत की लापरवाही के बाइस अहम तरीन तिजारती शाहराह किसी गांव देहात का मंजर पेश कर रही है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ साबरी, समा, कराची। माहिर मुआशियात खुर्रम शहजाद भी आई चंडीगढ़ रोड की तबाही पर बोल पड़े। उनका कहना है कि इस अहम सड़क पर स्टॉक एक्सचेंज और स्टेट बैंक समेत 35 से ज़ायद बैंक्स हैं, जिनमें 22 खरब के असासे मौजूद हैं। खुर्रम शहजाद ने पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट की असर नो तामीर का मुतालबा कर दिया। एक दिन का कराची का जो बिजनेस है वो 30 अरब रुपए का है। उसके अंदर जो टैक्सेस कराची जनरेट करता है एक दिन में तकरीबन एक तखमीना अगर लगाया जाए तो 3.5 से 4 अरब रुपए एक दिन में जनरेट करता है, जिसका मेजर पोर्शन आप कहें कि फाइनेंशियल जो है वो सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके थ्रू होता है, वो सारी इस स्ट्रीट के थ्रू होती हैं। मेजर बैंक सारे यहाँ पर हैं। आज भी अगर आप नंबर ऑफ बैंक्स देखें पाकिस्तान में 33 शेड्यूल्ड बैंक्स हैं और उन सबका अगर आप एसेट्स की वैल्यू देखें तो 22 ट्रिलियन रुपीस बनती है, जो कि तकरीबन कोई 130 अरब डॉलर बनते हैं। यहाँ पे ये होना चाहिए कि इसको एक डाउनटाउन डिस्ट्रिक्ट जो है वो एक एक्सक्लूसिव डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाए। उसके साथ साथ फिर यहाँ पे बिजनेस और इकोनॉमी के हिसाब से जितना काम हो सकता है यहाँ पे किया जाए, इसको जो है रिंग फेंस किया जाए। कराची में बारिशों के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह हो गया है। शहर की सड़कें टूट गई हैं,
जगह जगह गंदा पानी जमा है। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखिए। हालिया बारिशों के बाद कुछ इलाकों से बारिश का पानी तो सड़कों से उतर गया, मगर उसकी जगह सीवरेज के गंदे पानी ने ले ली। सबसे ज्यादा लियारी काले पानी की सजा काट रहा है। काले पानी से गुजर रहे हैं हम पिछले हफ्ते से पूरे, यहाँ तक तो पानी था। गटर के पानी में से रोज गुजर रहे हैं, रोज काम पे जा रहे हैं, रोज अपना काम कर रहे हैं। सेंगो लैन, फूलपत्ती लैन, आगरा ताज समेत मुख्तलिफ इलाकों में गटर का पानी गलियों में बह रहा है, जिससे गुजरना मुहाल है। हमने MP, MNA और इसको अपना नाइब नाजिम को पूछा, उन्होंने कहा हमारे हाथ में इख्तियारात नहीं है। हमने यहाँ वो जनाजे देखे हैं जो गाड़ी में रख कर जो ना मस्जिद तक गए, कंधा भी नहीं दे सके हम लोग उनको। शेरशाह चौरंगी से मीरा नाका जाने वाली सड़क जगह जगह से टूट चुकी है। निकासी आब का निजाम इतना नाकिस है कि ये सड़क झील का नमूना बन चुकी है। गाड़ियाँ जो है हिचकोले खाती हुई यहाँ से जाती है, ऐसा लगता है कि बस जो है वो गिर जाएगी, बिल्कुल इस तरह से खड्ड में गिर जाती है, ऐसा लगता है कि बस अब गिरने वाली है। बेशतर मुकामात पर सीवरेज का दम तोड़ता निजाम शहरियों के लिए वबाले जान बना हुआ है, मगर महकमा बल्दियात कहीं मुतारिक नजर नहीं आता। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शाहनवाज अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। कराची में हुकूमती कारकर्दगी से मायूस शहरी गली मोहल्लों से गंदगी और कीचड़ साफ करने के लिए खुद मैदान में आ गए। नॉर्थ नाज़िमाबाद के रिहायशियों ने हैवी मशीनरी मंगवा ली। देखिए इस रिपोर्ट में। कराची में बारिश को कई रोज बीत गए, मगर गलियों और मोहल्लों से गंद और कचरा साफ ना हो सका। ऐसे में रिहायशियों ने अपनी मदद आप के तहत हैवी मशीनरी मंगवा कर इलाके की सफाई का आगाज कर दिया। हमने कोशिश की है, हम ये पूरे इलाके को जमा किया है, हमने उसमें से फंड्स जमा किए हैं, गाड़ियाँ मंगाई हैं, इंशाल्लाह काम करेंगे। मैं डॉक्टर आरिफ अलवी का स्टूडेंट कि मेरी सर से रिक्वेस्ट है कि सर हम भी ग्राउंड पे खड़े, जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे हम तब भी खड़े थे। DMC, KMC जिसके पास भी जाते हैं तो वो बेचारे यही कहते हैं कि यार हमारे पास मशीनरी नहीं है, जो मशीनरी है वो ख़राब है। आते हैं तो कहते हैं डीजल नहीं है। तो इन चीज़ों से तंग आके कि हम उनके पास जाएं, बजाय इसके कि हमने अपनी मदद आपके तहत अपने इलाके के लोगों से हमने बात की। लोगों ने कहा ठीक है हमें खुद ही करना पड़ेगा। इंतज़ामिया इस कीचड़ को, इस मट्टी को, इस कचरे को उठाने के लिए लगता है कि उनकी जिम्मेदारियों में शामिल ही नहीं है। हुकूमती कारकर्दगी से शहरी मायूस दिखाई देते हैं। कहते हैं गली मोहल्लों की सफाई के लिए कम्युनिटी बुनियादों पर इलाका मकीनों को इकट्ठा होकर खुद आगे आना होगा, क्योंकि सरकारी इदारे तो अवाम की मदद में नाकाम हो चुके हैं। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। बारिश के पानी में डूबने वाली कराची की मशहूर नर्सरी फर्नीचर मार्केट के दुकानदार लाखों मालियत का सामान खराब होने से परेशान है। हुकूमत से टैक्स और यूटिलिटी बिल्स माफ करने का मुतालबा कर दिया। साथ साबरी की रिपोर्ट। किसी की शादी के जहेज का ऑर्डर तैयार था तो किसी से एडवांस रकम भी दुकानदारों ने ले रखी थी, मगर हालिया बारिशों में शारे फैसल का नाला ओवरफ्लो होने से सारे अरमानों पर पानी फिर गया। नर्सरी पर कायम कराची की इस मशहूर फर्नीचर मार्केट के दुकानदार लाखों का नुकसान होने पर सर पकड़े बैठे हैं। हम 15-20 लाख के नुकसान में आ चुके हैं। एक छोटा दुकानदार भी 4-5 लाख के नीचे आ चुका है। तो अब आप बतलाएं कि अब आइंदा हर साल सितंबर में ये बारिशें होती हैं, अगस्त सितंबर के अंदर, अब उसके बाद टैक्सेस का सिलसिला होता है, तो उसके लिए हमारे साथ क्या ताउन हो सकता है। नर्सरी फर्नीचर मार्केट में 350 से जायद दुकानें हैं। मालिकान ने हुकूमत से टैक्स और यूटिलिटी बिल्स माफ करने का मुतालबा कर दिया। बिजली के बिल माफ करें, हमें टैक्स माफ करें और हमारे साथ ताउन करें। या तो हमें आसान कर्जा दिए जाए ताकि हम अपने कारोबार को दोबारा से बहाल करें, वरना तो इस तरह जिनके ऑर्डर हैं, जिनके सोफ़ों का फर्नीचर का ऑर्डर था, जिनकी शादी थी, वो अलग हमारा नुकसान है। वो कस्टमर कह रहे हमारा तो इवेंट है, आप कहीं से भी करो, हमें माल दो या तो पैसे वापस करो। तो हम तो इस पोजीशन में नहीं है कि उनको पैसे वापस कर सकें। ये जो डिज़ास्टर आया है, इससे बड़ा डिज़ास्टर नर्सरी में नहीं आया होगा। हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि इतनी ज़्यादा नुकसान के बाद अब आने वाले जो महीने हैं, 2 टैक्सेस के हैं, उसमें हमें रिलीफ दिया जाए। हमारे यूटिलिटी बिल जो हैं वो राइट ऑफ किए जाएं। माजी में भी कई बार लाखों रुपए मालियत का फर्नीचर बारिश की नज़र हो चुका है। बारिश के पानी में डूब जाने वाली कराची की मशहूर नर्सरी फर्नीचर मार्केट को उभरने के लिए हुकूमती इमदाद की ज़रूरत है। मार्केट के दुकानदार कहते हैं कि इंतज़ामिया मुस्तकिल बुनियादों पर इन मसाइल का सद्जवाब करे। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ साबरी, समा, कराची। और कराची के बाद अंदरूने सिंध में भी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी है। दरियाए सिंध, गुड्डू और सखर बैराज के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी नुकसानात का जायजा लेने सखर पहुंच गए। बड़ी तबाही पर वफाक से मदद मांग ली। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब डिक्लेयर, पानी का बहाव 5 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। सक्खर बैराज में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है, पानी की आमद 4,20,000 क्यूसेक है। 48 घंटों में 5 लाख क्यूसेक हो सकती है। वज़ीर आला मुराद अली शाह वज़रा के साथ सक्खर बैराज पहुंच गए, सूरत हाल का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, महकमा इरिगेशन को मुतहरिक किया है, गुड्डू से कोटरी तक कमेटी बना दी है, लेकिन तबाही इतनी ज्यादा है कि अकेले कुछ नहीं कर सकते। ये हाई फ्लड सिचुएशन है। इस वक्त जो ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है वो हमारे इन देही ज़िलों में जहाँ पे पूरा दरिया साथ दे रहा है। सूबाई हुकूमत इतनी बड़ी डिज़ास्टर जो है, ये नेशनल कैलेमिटी है, उसको अकेले से नहीं कर सकती, उससे फेस नहीं कर सकती। हमें फेडरल गवर्नमेंट की शदीद मदद की ज़रूरत है। खैरपुर में कच्चे के इलाके मुकम्मल डूब गए हैं। विलुसियाल, सादिक कलहोड़ो, फैज मोहम्मद नारेजो समेत 200 से ज्यादा देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। कंगरी, गम्बट और सोबो देरों में हजारों अफराद फंसे हुए हैं। घोटकी में बचा बंद रोनती कच्चे के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। कई गाँव दीगर इलाकों से कट गए हैं। दूसरी जानिब दादू के इलाके काछू में सैलाब को 14 दिन गुजर गए, लेकिन रास्ते अब भी बहाल नहीं किए जा सके। 200 देहात तहसील जूही और दादू से कटे हुए हैं। लोग खुले आसमां तले पड़े हैं। सड़क बंद, अशिया ख़ोरोनोश की किल्लत पैदा हो गई है। पेट के वबाई अमराज फूट पड़े हैं। इमदादी सामान की तकसीम के खिलाफ आज भी मुजाहरे हुए। मुजाहिरीन ने कहा, इमदादी सामान इंतजामी सतह पर तकसीम करने के बजाय वडेरों के हवाले कर दिया गया है। बराह रास्त जाएंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे NDA में शामिल है, हमारी अफवाज के लोग शामिल हैं टू इंश्योर कि ये इम्प्लीमेंटेशन भी हो और इसकी एक टाइम लाइन भी हो। तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 1 साल में मुकम्मल होंगे, कुछ 2 साल में, और जो मैक्सिमम है सारे प्रोजेक्ट्स वो 3 साल में ये टाइम लाइन दी गई है। मानिए कि ये प्रोजेक्ट जो हैं तो फाइनेंशियली और टाइम वाइज जो है तो बड़े स्पेसिफिक हैं। अब इसकी जो तकसीम है वो ये है कि ग्रेटर कराची वाटर सप्लाई, जिसको हम K4 के नाम से जानते हैं, वो 46 अरब रुपए का उस पर खर्चा आएगा। कराची सर्कुलर रेलवेज पे 300 अरब रुपए का खर्चा आएगा। रेलवे फ्रेट कॉरिडोर है 131 अरब रुपए का। ग्रीन लाइन BRT 5 अरब रुपए। और जो उन लोगों के लिए जो कि इन नालों से या जो भी तजावुज़ात हैं उनमें से जिनको बेदखल किया जाएगा, उनको सेटल करने के लिए, उनको एक मुतबादिल जगह देने के लिए 254 अरब रुपए रखे गए हैं। अब इसमें ये जो टोटल कॉस्ट है वो जो फेडरल हुकूमत देगी वो 736 अरब रुपए हैं। इसमें से हुकूमत का इरादा है कि जो बैरियर टाउन का जो केस था उसमें 125 अरब रुपए उस मद में हम जो सुप्रीम कोर्ट ने वो एक फैसला दिया था, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे लिए ये अवेलेबल हो जाए 3 सालों के अंदर अंदर। तो इसलिए जो फंडिंग का जो पूरा एस्टिमेट था उसमें फेडरल हुकूमत जो है वो 611 अरब रुपए का हिस्सा डालेगी। यानी जो 1 अरब रुपए का जो एस्टिमेट है उसमें से हम जो है तो 611 अरब रुपए वो फेडरल हुकूमत करेगी। इसमें ये मैं बताता चलूँ कि चूँकि जो प्रोविंशियल हुकूमत थी उनकी इंटरेस्ट ये थी कि जो वो KCR का जो प्रोजेक्ट है वो खुद करें, लेकिन चूँकि रेलवेज आपको पता है कि ये एक फेडरल सब्जेक्ट है और इसको और सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कर दें 611 अरब का हिस्सा हमारी तरफ से, फेडरल वफाक की तरफ से, उसमें हाँ 125 उसको भी शामिल करेंगे। ठीक है जी। अब
चूँकि ये फेडरल रेलवे जो है तो एक फेडरल सब्जेक्ट है, पार्ट 2 शेड्यूल 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो इसका जो फाइनेंशियल बर्डन है वो 300 अरब रुपए का है। तो फेडरल हुकूमत इसको इस प्रोजेक्ट की सरपरस्ती भी करेगी और इसको करेगी, क्योंकि इसके एक तो ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी है और जो है आइन की वो भी है हमारे उस पर नहीं, ये टोटल जो है तो 611 अरब है। ये तो उस प्रोजेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ जो रेलवे की है। तो मकसद ये है कि इसमें सिर्फ मकसद ये था इन हकाइक को और इसका ब्रेक डाउन देना, कि आपको पता हो कि जो हकाइक हैं वो ये हैं। और ये प्रेस रिलीज हम जारी भी कर रहे हैं, ये कोई महज सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं है। तो मैं इसकी कॉपी भी आपको दे दूंगा, जिससे कि आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और उस पर आप खुद ही फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो सिंध हुकूमत है वो कि हमारी पूरी कोशिश है। हम चाहते हैं कि देखें, कराची की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए अगर कुछ चीज़ों पे इत्तेफाक राय से काम हो सके, एक ऐसा माहौल बने जिसमें कि मिल के काम करें और उन प्रोजेक्ट्स को आगे ले जाया जाए, तो हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम कोई ऐसा माहौल ना पैदा करें। लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन या ये जो हमने देनी थी, ये इसलिए वजाहत हमने मुनासिब समझा क्योंकि उधर कंफ्यूजन क्रिएट कर दी गई थी, जिसमें कि उल्टा कहा गया था कि 300 अरब दे रही है वफाकी हुकूमत और जो बाकी पैसे हैं वो सूबाई हुकूमत दे रही है। पहले तो बात ये है कि उनके पास ये इतने पैसे हैं नहीं, तो इसलिए ये ज़रूरी हमने समझा कि रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए इसका कोई मकसद किसी लड़ाई झगड़े में पड़ना नहीं है, लेकिन जो हकाइक हैं उनको पेश करना हमारी जिम्मेदारी है कि पाकिस्तानी अवाम जान सकें, सिंध की अवाम जान सकें कि वफाकी हुकूमत जो कि एक अपोजिशन की हुकूमत है पीपल्स पार्टी के लिए, हम पूरी तरह से सिंध के अवाम और सिंध के लोगों के लिए, कराची के लोगों के लिए जो भी हमसे बन पड़ा हम करेंगे। और इसमें मैं साथ में आखिरी बात ये करना चाहूँगा कि जो हमारी रूरल सिंध और जो बाकी सिंध है वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे एक पाकिस्तान का हिस्सा है और उनकी जो हालत है, जो ख़ास तौर पे जो सैलाब और जो भी उन पे उफ्ताद पड़ी है, तो हम चाहेंगे कि उनके लिए भी हम वो करें, क्योंकि ये किसी तफरीक के बग़ैर है, ये बिल्कुल सियासी तफरीक के बग़ैर है। तो हम चाहते हैं कि जो हम जो कुछ भी कर सकते हैं अपने महदूद वसाइल के बावजूद हम इन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करें। बहुत शुक्रिया सर। एक तो ये बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले ही, थोड़े दिन पहले ही एमक्यू पीपल्स पार्टी और पीटीआई का कराची के पॉलिटिकल से एक इत्तेहाद भी हुआ था, मिलजुल कर काम करने की बात भी हुई थी। अब प्राइम मिनिस्टर फिर गए हैं और कल हमने देखा कि मौलाना अली शाह ने उनका इस्तेमाल भी किया। कहीं इसके बावजूद बाद में इस तरह की चीजें निकल रही हैं, कहीं ये 80 और 90 की दहाई की दोबारा सियासत तो नहीं हो रही, जब मरकज में किसी और की हुकूमत होती थी, पंजाब में किसी और की, फिर अगले दफा वही मामला चल रहे थे होते थे, तो इस खिंचातानी में नुकसान पाकिस्तान का नहीं हो रहा? नहीं जी, देखें मसला कहाँ पे आता है? मसला उस वक्त आता है जब आपकी एक खास एग्रीमेंट हो जाए, तो उसमें फिर दोनों पार्टीज का फर्ज बनता है कि वो उसके बारे में, उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के बारे में गैर जिम्मेदाराना और गलत किस्म की गलत बयानी करना वो नहीं चाहिए। ये जेब नहीं देता। पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत है, उनको ज़रा ज़्यादा जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए, क्योंकि इससे जो है तो एक तासुर यही मिलेगा जिसकी बात आप कर रहे हैं। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है और हम इंशाअल्लाह हमारी पूरी हम इस उसमें नहीं आएंगे गलतफहमी में कि हमने ये जो माहौल क्रिएट किया जाए चाहे किसी तरफ से भी हो वो दुरुस्त नहीं है। और मकसद ये है कि इस महाज़ाराई में कहीं जो
मुल्क की तरक्की है या जो सूबे की तरक्की है वो सफ़र ना करे। जी सर, ये जो आपने प्रोजेक्ट बताए हैं K4 है जी, K4 10 साल पहले ने प्रूव किया था, 40% मुकम्मल हो चुका है। कराची सर्कुलर मिल में वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाशी पंजाब मौसिन लगारी ने नहरी निज़ाम पर सवालात उठा दिए। समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट को इंटरव्यू में बोले, ये मुआवजा है कि अब तक हमारा नहरी निज़ाम लोगों तक पानी पहुँचा रहा है। ये भी कहा कि नहरों की मरम्मत के लिए 70 के बजाय 7 अरब रुपए मिलेंगे तो कैसे निज़ाम चलेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार मोहसिन लगारी से क्यों नहीं मिले, ये भी बता दिया। नहरों की देखभाल करने के लिए तकरीबन 6-7 अरब रुपए मिलते हैं सालाना। लाहौर का गंद उठाने वाली कंपनी को भी शायद 18 अरब रुपए मिलते हैं। लाहौर का गंद उठाना जो है वो नहरी निज़ाम से 3 गुना ज़्यादा अहमियत है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है 20 से 25 अरब डॉलर इसकी वैल्यू, तो जब मुझे ज़रूरत 70 अरब की और मुझे मिले 7 अरब, तो ये नहरी निज़ाम किस तरह मेंटेन होगा। भावल नगर में एक नहर है हाकड़ा कनाल, 3200 क्यूसेक की कनाल है, 2 दफ़ा टूट गई। और ये नहीं कि वो 3200 पे टूटी, एक दफ़ा 2500 पे टूट गई, एक दफ़ा 2600 पे टूट गई। मेंटेनेंस की अहमियत लोगों को हमें इसलिए समझ नहीं आती कि कहीं जाके कोई नई तख्ती नहीं लगानी ना। ये मुआवजा है कि अभी तक हमारा नहरी निज़ाम जो है वो लोगों तक पानी पहुँचा रहा है। वज़ीर आला बनना चाहिए, बहुत बड़ी जिम्मेवारी वाला काम है। उस्मान खान के वालिद साहब बुज़दार हमारी नेबरिंग ट्राइब है, हमारा पुश्तों का एक ताल्लुक है। अब आप लोग इस किस्म की बातें करके नमक मिर्च मसाला लगाते हैं, उससे बीच में दरारें आने लग जाती हैं और ये होता है कि पता नहीं शायद ये कोई मेरे खिलाफ साजिश करता फिर रहा है क्या है। मैं इन चीज़ों में बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन आपका नाम आता है, आई हैव नो आइडिया। कैसे आ जाता है? आई हैव नो आइडिया जी। मेरे ख्याल में शायद क्योंकि शायद मैं शायद पुराना हूँ। आपसे मिलते क्यों? मेरा उस दिन उसने वो मास्क की वजह से उसने रोका, तो मैंने कहा ये कुछ, मैं उस्मान खान ये मतलब इस तरह तो नहीं मुनासिब ना कि कोई हमें रोके। तो उस दिन भी थी सर, तो उस दिन नहीं रखे गए थे ना, यही तो मैं कहने लगा भाई क्यों। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी LNG रेफरेंस में एहतसाब अदालत में पेश हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज सबसे करप्ट हुकूमत अवाम पर मुसल्लत है, लेकिन किसी एक शख्स के खिलाफ भी इंक्वायरी नहीं हुई। 2 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है ये नैब अपने काम में लगा हुआ है। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का तरीका है, अपोजिशन को दबाने का तरीका है। आपको हकीकत से कहता हूँ, या आज नैब चला लें या मुल्क चला लें, नैब का चेयरमैन बताए कि यहाँ कौन सा जुर्म हुआ है। मेरे खिलाफ ये मीडिया में भी लीक किया गया कि इनको किसी इंडियन कंपनी ने पैसे भेजे। इतना बड़ा सफेद झूठ बोलने से पहले नैब को कोई शर्म तो आनी चाहिए। हम नैब से घबराते हैं ना, हम नैब से डरते हैं। 53 रुपए की चीनी 110 रुपए में बिक रही है। नैब का चेयरमैन टस से मस नहीं हुआ। आज जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे करप्ट हुकूमत मौजूद है, जो हर रोज अवाम पर एक नया डाका डालती है, हर 2 नंबर आदमी आज वजीर और मुशीर बना हुआ है। पाकिस्तान की अवाम हमसे तोको लगाए बैठे हैं। इंशाअल्लाह KPC इसीलिए हो रही है कि वहाँ पर शावरत से एक मुतफिका लाएअमल होगा। हमारा काम है इस करप्ट हुकूमत को घर भेजें। कराची में पुरानी सब्जी मंडी के करीब अगवा के बाद कत्ल की जाने वाली 6 साला बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती का इंकशाफ हुआ है। बच्ची को ज्यादती के बाद वजनी चीज सर पर मार कर कत्ल किया गया और लाश कचरा कुंडी में फेंक दी गई। दूसरी तरफ कत्ल की तफ्तीश सुस्त रवि का शिकार है। पुलिस ने 11 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया, लेकिन तफ्तीशी अफसर के कमरे पर ताला पड़ा है। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट। कराची की पीर बुखारी कॉलोनी में घर से चीज लेने के लिए नंगे पांव निकलने वाली 6 साल की बच्ची का अगवा और कत्ल मेडिकल रिपोर्ट में दरिंदगी साबित हो गई। जिना अस्पताल की मेडिको लीगल अफसर डॉक्टर जकिया के मुताबिक बच्ची को ज्यादती के बाद सर पर वजनी चीज मारकर कत्ल किया गया और लाश कचरा कुंडी में फेंक दी गई। बच्ची के जिस्म पर झुलसने का कोई निशान नहीं था। लाश खराब होने के बाद फूल गई थी। इतवार को बच्ची के लवाहिकीन ने दिन भर एहतजाज किया और यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रही।
मगर पुलिस के कान पर जूं तक न रेंगी। अगवा, ज्यादती और कत्ल की तफ्तीश सुस्त रवि का शिकार है। PIB थाने में इन्वेस्टिगेशन का कोई अफसर मौजूद नहीं था। तफ्तीशी अफसर के कमरे पर ताले पड़े थे। अभी तक तमाम कार्रवाई ऑपरेशन पुलिस कर रही है, जिसने दावा किया है कि वाक़े के बाद 11 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, जिनका DNA टेस्ट किया जाएगा और जिन पड़ोसियों पर शुबा जाहिर किया गया था उन 2 अफराद का DNA लिया जा चुका है। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची। फैसलाबाद में लेडी कांस्टेबल को ब्लैकमेल करने वाला मुलजिम FIA साइबर क्राइम के खत्ते चढ़ गया। शाहीन शहजादी की रिपोर्ट। मुझसे गलती हुई है, मैं उससे चाहता हूँ कि अल्लाह के लिए वो मुझे माफ़ कर दे, चांस दे दे। फैसलाबाद की लेडी पुलिस कांस्टेबल को तस्वीरों से ब्लैकमेल करने वाला मुलजिम FIA की गिरफ्त में आ गया। मुलजिम का कहना है वो लेडी कांस्टेबल को तलाक दिलवाकर शादी करना चाहता था। कांस्टेबल से फ्रेंडशिप थी तो मैं उनसे शादी करना चाहता था, तो इसलिए मैंने उनकी तस्वीरें और वीडियो उनके हस्बैंड को भेजी ताकि उनको डिवोर्स हो जाए। FIA के मुताबिक ब्लैकमेलिंग के अक्सर ऐसे वाक़यात की वजह ताल्लुक का टूटना है। मोस्टली केसेस में मैम ऐसा ही होता है कि पहले रिलेशन होता है, फिर वो मतलब ब्रेकअप हो जाता है, फिर उसमें ब्लैकमेलिंग आ जाती है, हरासमेंट आ जाती है, पिक्चर्स या तस्वीरें वो उसके रिश्तेदारों को वायरल करते हैं। FIA ने मुलजिम से गैर इखलाकी मवाद बरामद करके 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर हवालात में भिजवा दिया है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ शाहीन शहजादी, समा, फैसलाबाद। हिंदुस्तानी 2 जहाज इस तरफ आ रहे हैं। ओवर। हम तैयार हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे दुश्मन के 2 जहाज नजर आ रहे हैं, मुझे आगे बढ़ना होगा। यहाँ दुश्मन के कुछ और जहाज भी नजर आ रहे हैं। तुम में से कोई नहीं बच सकेगा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।